Very warm welcome, my dear children and dear learners who are constantly learning with me on my channel. Thank you for all your love and support. So, yesterday we covered William Shakespeare's biography, his early life, his marriage, and the critical comments by the contemporary writers. So, these things we covered yesterday. This is the continuation video, and we will be covering the major works, how he contributed English literature. Okay, so let's start without further ado. बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं. सो ये है फर्स्ट स्लाइड. यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कैसे शेक्सपियर के थ्रू आउट लिटरेरी लाइफ को कैसे 4 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. So first phase starts from 1588 to 1594. Second phase इनका belong करता है 1594 to 1600. And third phase 1601 to 1607. Fourth phase belongs to 1608 to 12. Okay, so let's discuss about his major works in the upcoming slides. So here we are going to discuss about his major comedies and romantic comedies. Okay, so these we are categorizing his work in different categories. Okay, so these are the plays which comes in the comedy as well as romantic comedies. Okay, so as you like it, Cymbeline, Major for Major, Pericles, Prince of Tyre, The Tempest, The Merry Wives of Windsor, Much Ado About Nothing, The Winter's Tale, All's Well That Ends Well, The Comedy of Errors, Love's Labour's Lost, The Merchant of Venice. It is in the school level also. School books you could get this particular play, The Merchant of Venice, and Taming of the Shrew, Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream, The Two Gentlemen of Verona. Okay, so these comes in the comedies and romantic comedies. Next is William Shakespeare's tragedies. अब हम लोग उनकी tragedies के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितनी tragedies उन्होंने लिखी हैं. So these are the tragedies written by, and tragedies वो होती हैं जिनका tragic end होता है, जिसमें कि स्टेज पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ होती हैं एंड सैड एंडिंग होती है. चारों तरफ ब्लड एंड ऑल ये होता है स्टेज पे. सो कोई वॉर, कोई इस तरीके से सैड एंडिंग होती है. ओके, सो दैट्स वाई दे कम्स इन द ट्रेजेडीज. ओके, सो ये हैं इनकी लिस्ट ऑफ ट्रेजेडीज. सो रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, ओथेलो, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, कोरियोलेनस, द लाइफ ऑफ टाइमन एंड एथेंस, टाइमन ऑफ एथेंस, मैकबेथ, हैमलेट, टाइटस एंड्रोनिकस, Cleopatra, Antony and Cleopatra, Cymbeline, and the history of Troilus and Cressida. So एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी जो कि हमने कोई सेपरेट स्लाइड में नहीं डाला है. सो इनकी ट्रेजेडीज़, इन्हीं ट्रेजेडीज़ में से 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं इनकी, जो कि इसमें दिया हुआ है. आई विल नेम देम दोज 4 ट्रेजेडीज़, दैट इज़ किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ एंड हैमलेट. ओके, सो ये 4 जो है ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं. ओके, सो और इन्हीं में से कुछ ट्रेजेडीज़ जो हैं वो रोमन ट्रेजेडीज़ भी कंसीडर करी जाती बाय सम क्रिटिक्स, दैट वी विल डिस्कस फर्दर. अभी नाउ वी आर डिस्कसिंग कि इनके हिस्टोरिकल प्लेज, दैट इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज ही इज़ द प्ले राइट. मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में ही कवर किए हुए हैं. बहुत पुराने टाइम के हिस्टोरिकल जो किंग्स रहे हैं उनको कवर करते हुए ऑलमोस्ट 400-500 ईयर्स के किंग्स को इन्होंने कवर किया है. सो द हिस्टोरिकल प्लेज आर दीज: किंग जॉन, एडवर्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, और हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2, Henry 5, Henry 6 part 1, part 2, part 3, and then Richard III, which is also considered as a tragedy. Okay, and Henry 8th. So ये है इनकी historical plays की list. Okay, so let's switch to the next one.
Now I'm going to discuss about the Roman play, which I already discussed, started in the tragedy section. So ये these are the three plays, okay? यही थ्री हैं जो कि रोमन प्ले कंसीडर करते हैं बहुत सारे क्रिटिक्स, और वो हैं जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, एंड कोरियोलेनस, राइट? So these three are the Roman plays because they are set in the Rome only. Okay, so that's why these plays are set and performed in the Italy set of Rome. Okay, so that's why these are considered as Roman plays. Shakespeare's poems. Now we are going to discuss about the apart from his large repertoire. Okay, a repertoire is like means combination of different writings. Okay, different set of writings. तो इन्होंने बहुत सारे कॉमेडीज लिखे, प्लेज लिखे, रोमांटिक प्लेज लिखे, ट्रेजेडीज लिखे, हिस्ट्रीज लिखे, हिस्ट्री प्लेज लिखे. So apart from these n number of writing style, he wrote poems also, right? Poems, narrative poems, sonnets, that sort of thing, right? तो इनकी जो फाइव पोम्स हैं, लाइक वीनस एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रेसी, पैशनेट पिलग्रिम, फेनिक्स एंड द टर्टल एंड द लवर्स कंप्लेंट, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने कवर करी हैं. ओके, और इनकी जो वीनस एंड एडोनिस है, ये जो है ये इनकी सबसे ज़्यादा जो है इज नोन फॉर his narrative poems, right? So which are dedicated to Earl of Southampton, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया था इन्होंने. और ये है इनकी अबाउट हिज पोम्स. Now I'm going to discuss about in a bullets that it is the same one which is mentioned in a bullet form, that Venus and Adonis he wrote in 1593, Rape of Lucrece he wrote in 1594, शेक्सपियर सॉनेट्स 1594 में इन्होंने लिखा था. और सॉनेट्स का आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि जो सॉनेट थे 1594 में इन्होंने इनके पब्लिश हुए थे, जो कि उसमें इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे थे. और उस 154 सॉनेट्स में से इन्होंने सोनेट नंबर 1 टू सोनेट नंबर 126 जो था वो डेडिकेट किया था एक पर्सन थे, मिस्टर डब्ल्यू एच. ओके, विलियम हर्बर्ट. बाद में उनका नाम थोड़ा सा रिवील हुआ था. ठीक है, ही वॉज अ वेरी फेयर मैन एंड ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ विलियम शेक्सपियर, राइट? तो इनके बारे में उन्होंने 126 सोनेट लिख डाले. आफ्टर दैट क्या हुआ कि इन्होंने जो है 127 टू 152 सोनेट जो एक डार्क लेडी को लिखा. डार्क लेडी वॉज नॉट लाइक शी वॉज डार्क इन कलर, बट शी वॉज हिडन, मतलब उसकी आइडेंटिटी कोई जानता नहीं था, और उसको इन्होंने डेडिकेट किया. दैट्स वाई शी वॉज कॉल्ड एज डार्क लेडी. ओके, तो इनको डेडिकेट किया था फ्रॉम 27 नंबर 127 सोनेट टू 152 सोनेट. सो ये वाला जो इनका सोनेट था ये उन्होंने उस लेडी को डेडिकेट किया था, राइट? सो और बाद के जो दो सोनेट्स थे वो इन्होंने लव और स्पेल लिखे हुए थे, राइट? सो दिस वे. और पैशनेट पिलग्रिम इन्होंने 1598 में लिखा. फेनिक्स एंड टर्टल इन्होंने 1601 में लिखा. देन लवर्स कंप्लेंट जो है ये इन्होंने 1609 में लिखा था. ओके, सो दैट वाज हिज लास्ट पोम. लेटर लाइफ, इनके लेटर लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. हाउ ही डाइड and what was this? Shakespeare became a shareholder in the prestigious theatres such as Globe and the Globe and the Blackfriars, right? So ये जो बहुत ही बड़े prestigious थिएटर हुआ करते थे वहाँ के, उसमें भी इनका शेयर होल्डिंग हो गया. Okay, he was shareholder in that these two major big theaters, right? So and उसके बाद इनकी लाइफ में ट्रेजेडी स्टार्ट होती है. His son was the only son, because as I mentioned yesterday, he had firstly he had a daughter Suzanne, and then he got two twins, Hamnet and Judith. So the boy Hamnet, he was the only son,
Okay, so he died at the age of 11 in 1596, and his father died in 1601, and mother also died just in 7 years of gap, 1608. Okay, so these were the back-to-back tragedies happened in the Shakespeare's life. Or between 16010 to 1612 he returned to his hometown. और 10 के बाद 12 तक होते होते 4 साल के बाद मदर फादर बच्चे के एक्सपायर होने के बाद ही अगेन केम बैक टू स्ट्रैटफोर्ड, जहाँ पे वो पैदा हुए थे. Okay, earlier he was in living in London in a royal court, and sharing holder in the prestigious theatres. So अब जब वो बैक आते हैं अपनी सिटी में स्ट्रैटफोर्ड में, तो ही वॉज एक्सट्रीमली रिच एंड ऑल. तो उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ पे अपना एक सबसे बड़ा घर खरीदा वहाँ पे. ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन, दैट्स वाई ही बॉट द लार्जेस्ट हाउस ऑफ दैट टाइम, और उसका नाम उन्होंने रखा द न्यू पैलेस. ओके, और फिर इनका हेल्थ ब्रेक डाउन होता है, एंड 23 अप्रैल 1660 को ही पास्ड अवे, एंड मर जाते हैं. और उसके बाद जो है इनको कहाँ बरीड, ही वॉज बरीड इन द हॉली ट्रिनिटी चर्च इन स्ट्रैटफोर्ड. ओके, सो वहीं के हॉली ट्रिनिटी में ही इनको दफनाया जाता है. और आई वुड लाइक टू मेंशन कि जहाँ पे इनको दफनाया गया था वहीं पे ही 1603 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को भी इसी चर्च में ही बरी किया गया था. ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स एरा. ओके, so thank you everyone, keep watching, you will continuously get the informative videos like this. Just keep giving your support and love to the videos, and do like, subscribe and comment if possible. No, thank you, good night.